Hello students, this is Vinita Singh from St. Xavier School Nalia, and today I will start class 10 chapter number 3, metals and non-metals. Okay, at the end of this chapter you will be able to learn physical and chemical properties of metals and non-metals and their reactivity orders of metals. Okay, so let's start it. Physical properties of metal. You may have also studied in your previous classes also, and here I will discuss the physical properties of metal with their exceptional cases, because many a time in your exams questions were asked from the exceptionals. Okay, so metals are solids except mercury, because mercury is found in liquid phase. Okay, then metals are hard except lithium, potassium, and sodium. Lithium, potassium, sodiums are so soft they can be cutted by the knife also. Okay, metals have metallic luster. Luster means shine. Metals are malleable. Malleable means it can be beaten into the thin sheets. Like in your in market, you can get the metal sheets, aluminium sheets, like that. Okay, metals are ductile. Ductile means it can be drawn into the wires. Okay, like copper wires, silver wires, you can get from markets easily. Okay, metals have high melting point, but in gallium and cesium, they have very low melting point. They can melt if you take it in your hand, in your palm of the hands. Okay, अगर आप उसको हाथ में हथेली में भी रखते हो तो गैलियम और सीजियम ऐसे मेटल हैं जो कि बहुत जल्दी मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं. Okay, metals have high boiling points, and metals are the good conductor of the heat. The best conductor are silver and copper, and the poor conductor are lead and mercury. Okay, metals are the good conductor of electricity, like silver and copper, and metals are sonorous. Sonorous means it can produce the sound when you beat it. Okay, like that. Okay, these are the physical properties of metal with their exceptional cases. Okay, study it very carefully. Okay, then physical properties of non-metals. Non-metals may be solid, liquid, or gases in three of phases. Okay, if they are solid, then like carbon, sulfur, phosphorus, these are the examples of the solid non-metals. Okay, then liquid example is bromine water. Okay, then gases, oxygen, hydrogen, nitrogen, they are the non-metal gases. Okay, so non-metals are very soft, but except diamond. Diamond is the natural hardest substance. Okay, and this is the allotrope of the carbon also. Okay, and this is very soft. But non-metals are soft, but it shows the characters of the metals, but it's categorized into the non-metal because it's the allotrope of an carbon. Okay, non-metals do not have lusters, means उनमें शाइनिंग नहीं होती है. ठीक है, वो शाइन नहीं करते हैं, बट आयोडीन के जो क्रिस्टल्स होते हैं उनमें आपको शाइनी अपीयरेंस दिखाई देता है. सो इट्स आल्सो एन एक्सेप्शनल केस. नॉन मेटल्स आर नॉट malleable, they can't be beaten into the sheets. Okay, non metals are non ductile, they can't be drawn into the wires. Non metals which are solid and liquid have low melting points. Okay, non metals which are solid and liquid, they have low boiling point, low melting and low boiling point. Okay, non-metals are the bad conductor of heat and electricity, but graphite is a non-metal which ensures a good conductivity of electricity. Okay, and non-metals are not sonorous. Okay, they can't produce sound if you beat it. Okay, then the chemical properties of metal. So firstly, reaction with the oxygen. Okay, so when metal react with oxygen to form a metal oxide. Okay, so कब होता है ऐसा? ठीक है, मेटल रिएक्ट कब करता है ऑक्सीजन के साथ? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बना लेता है. तो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ओके, एयर में ही आपको लॉट्स ऑफ ऑक्सीजन मिल सकता है. सो व्हेन कॉपर इज हीटेड, जब उसको बर्न किया जाता है, हीट किया जाता है, तो वो क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है और वो क्या फॉर्म कर लेता है, कॉपर ऑक्साइड, लाइक Cu plus O2 CuO. Okay, when aluminium is heated, then it combine with the oxygen and form aluminium oxide Al2O3. Okay, some metal oxides are basic oxide because they react with water to form base. Okay, like sodium, when react with oxygen, it will form sodium oxide Na2O, and when Na2O react with H2O, water, when we are here we are
यूजिंग द ऑक्साइड ऑफ द सोडियम. ओके, सोडियम का ऑक्साइड हमने यहाँ पे यूज किया है. जब सोडियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया जाता है, हीट किया जाता है, तो वो सोडियम ऑक्साइड बना लेता है. और उसी सोडियम ऑक्साइड को जब हम वाटर से रिएक्ट करवाते हैं तो वो क्या करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है. तो वो मेटल्स क्या हो गए हैं, सोडियम पोटेशियम लाइक, जो हाईली विग्रियस होते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो वो क्या करते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स भी बनाते हैं. Some metal oxide shows the acidic and basic property. They are called amphoteric. Amphoteric means if metal oxide shows both character, acidic character as well as basic character, then it's categorized into an amphoteric oxides. Okay, like aluminium oxide or zinc oxide. ये ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जो एम्फोटेरिक इसके कैरेक्टर्स और प्रॉपर्टीज को शो करते हैं. मींस ये एसिडिक और बेसिक दोनों तरह की प्रॉपर्टीज इसमें शो करते हैं. ओके, Then the reactivity of different metal with oxygen. ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी भी तो सबकी अलग अलग होती है, तो वो उनकी अलग अलग कैसे होती है, क्या होती है, वो सब हम लोग इसमें पढ़ते हैं. ओके, सो मेटल लाइक पोटेशियम एंड सोडियम react vigorously with oxygen and catch fire if kept in open. Hence, they are stored in kerosene to prevent the burning. So the metal like potassium, sodium, ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, और थोड़ा सा भी मॉइस्चर अगर उन पे आता है तो वो क्या करते हैं, बहुत जल्दी रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं और फायर कैच कर लेते हैं. ओके, अगर उनको बाहर छोड़ा जाए तो मॉइस्चर और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो क्या करता है, बर्न करना शुरू कर देते हैं और काफी बार ब्लास्ट भी हो जाता है. तो इसी वजह से उनको क्या किया जाता है, पोटेशियम एंड सोडियम को कैरोसिन के अंदर स्टोर करके रखा जाता है, ताकि वो अपने आसपास की जो एयर है उसकी, उसमें मॉइस्चर है, ऑक्सीजन है, उसके साथ वो रिएक्ट ना कर सके. ओके, इफ मैग्नीशियम इज हीटेड इट बर्न विद अ ब्राइट फ्लेम. ओके, यू स्टडीड इन योर फर्स्ट चैप्टर आल्सो. If iron is heated, it also glows very brightly. Okay, but if copper is heated, it does not burn, but it form a black coating of copper oxide. Many times this question is also asked. Black coating of copper क्या होती है, तो उसको बोलते हैं copper oxide. Okay, तो copper को जब heat किया जाता है, जब उसको burn किया जाता है, तो वो burn तो नहीं होता है, but उस टाइम पे क्या हो जाता है, उस copper जो है अपने चारों तरफ एक black coating बना लेता है, जिसको बोलते हैं कॉपर ऑक्साइड. ओके, सिल्वर एंड गोल्ड जो होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं. इवन आप एक्सट्रीम टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर भी रखोगे तो भी वो उसके साथ रिएक्ट नहीं करेंगे. ओके, उनके रिएक्टिविटी बहुत कम होती है. कुछ मेटल्स लाइक मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, ये एक ऐसे मीडियम रिएक्टिविटी के, मतलब उनके अंदर ना तो वो ज्यादा हाई रिएक्टिव होते हैं ना वो लो रिएक्टिव होते हैं, मीडियम रिएक्टिव के रिएक्टिविटी ऑर्डर आप आगे जाके पढ़ोगे अभी इसमें, तो उसमें आपको पता चल जाएगा. मीडियम रिएक्टिविटी के जो मेटल्स होते हैं ये क्या कर सकते हैं, ये जैसे ही इनके ऑक्सीजन की रिएक्शन इनके साथ होती है तो ये अपने चारों तरफ क्या कर लेते हैं, एक ऑक्साइड की लेयर बना लेते हैं, जिसकी वजह से कि आगे मतलब और फर्दर ऑक्सीडेशन ना हो और ऑक्सीजन की लेयर उस पर ना चढ़े, तो इसीलिए वो क्या करते हैं, ऑक्साइड की एक प्रॉपर लेयर बना लेते हैं. इसको बोलते हैं सेल्फ प्रोटेक्टिंग मेटल्स. ओके, कौन कौन से है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड लेड. ओके, then second one, reaction with water. So when metal react with water to form metal oxide or metal hydroxide and hydrogen. Okay, जब भी कोई भी मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाता है और उसके साथ हाइड्रोजन गैस जो है वो भी इवॉल्व होती है. अंडरस्टूड. लाइक यहाँ पे सोडियम जो है, सोडियम ने H2O के साथ रिएक्ट किया तो NaOH बन गया है और H2 गैस इवॉल्व हो गई है. उसी तरीके से पोटेशियम के, K स्टैंड फॉर पोटेशियम, H2O से रिएक्ट करेगा तो KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और H2 फॉर्म होगी गैस. देन कैल्शियम रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस प्लस H2. देन एल्यूमिनियम जब H2O के साथ रिएक्ट करता है तो ये फॉर्म करता है Al2O3 प्लस H2. देन आयरन जब रिएक्ट करता है H2O के साथ तो वो बनाता है Fa2O3 प्लस 4H2. ओके, अंडरस्टूड. तो रिएक्टिविटी जो होती है डिफरेंट मेटल्स की वाटर के लिए वो भी बहुत ज्यादा अलग अलग होती है. ठीक है, लाइक सोडियम और पोटेशियम जो है वो बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेते हैं, तो इवन अगर कोल्ड वाटर भी होगा तो वो उसके साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बना लेते हैं और इजिली फायर को कैच कर सकते हैं. ओके, उसी तरीके से कैल्शियम जो है वो थोड़ा कम रिएक्टिव होता है वाटर के लिए, तो कम रिएक्टिव है जिसकी वजह से वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड वाटर एंड ये
जो क्या कहते हैं, कैल्शियम रिएक्ट लेस वायलेंटली विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड वाटर, वाटर ही बनता है, ओके, एंड डज नॉट कैच फायर, और ये फायर कैच नहीं करता है. मैग्नीशियम रिएक्ट ओनली विद द हॉट वाटर, ओके, वो सिर्फ हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तभी जाके उसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस मिलेगी, ओके. देन मेटल लाइक एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, ये रिएक्ट करते हैं सिर्फ वाटर की स्टीम से, ओके, गर्म जो भाप होती है वाटर की, सिर्फ उनकी प्रेजेंस में ये रिएक्ट कर सकते हैं और उन्हीं प्रेजेंस में ये मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बना सकते हैं. मेटल्स लाइक लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इनमें ये वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं, ठीक है, ये बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं वाटर के लिए, और एक्सट्रीम केसेस में हाई टेम्परेचर हो चाहे कुछ भी हो, कितना भी गर्म वाटर हो, कुछ भी हो, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कोई रिएक्शन शो ही नहीं करते हैं, लेड, कॉपर एंड सिल्वर, गोल्ड, ओके. Then reaction with acids. So when metal react with dilute acids, it's form in a salt and hydrogen. Okay, metal react with dilute acid to form salts and hydrogen. So when magnesium react with HCl, HCl is an acid. Okay, it will form MgCl2 salt and hydrogen gas. When aluminium react with HCl, it will form aluminium chloride, AlCl3 and hydrogen gas. When zinc react with HCl, it gives ZnCl2 plus H2. When iron react with HCl, then it will give FeCl2 plus H2. Okay, तो metals की जो reactivity होती है metal to metal, वो भी बहुत ज्यादा vary करती है, बहुत ज्यादा मतलब मायने रखती है उस टाइम पे, मतलब अलग अलग होती है. ओके, फॉर द अबाउ मेटल, ये जितने भी मेटल्स हमने पढ़े हैं, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन, तो इसमें आपको मैं अगर बताऊं तो इसमें जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के बाद किसका आता है, आयरन, एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम के बाद जिंक, जिंक के बाद आयरन. ओके, सो कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड जो होते हैं वो एसिड से भी रिएक्ट नहीं करते हैं, डाइल्यूट HCl से भी रिएक्शन इनका शो नहीं होता है. सो हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड बिकॉज इट्स एन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट्स ऑक्सीडाइज द H2 produced to water and is itself reduced to oxides of nitrogen. Okay, copper when react with HNO3, it will give copper nitrate CuNO3 whole twice, H2O water and NO2. Okay, then reaction of metal with metal salt solution. Okay, so when the more reactive elements displace a less reactive element, then this reaction is known as displacement reaction. You also studied it in your first chapter. So magnesium displaces a copper from its copper sulfate solution, and zinc displaces copper from copper sulfate solution. Then iron displaces copper from copper sulfate solution. Okay, तो यही सारी चीजें होती हैं इसके अंदर. तो आपने यहाँ डायग्राम में आपको दिखाई दे ही रहा होगा, मैग्नीशियम पाउडर को अगर हम लोग डालते हैं किसमें, ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, तो कुछ ही समय बाद में उसमें क्या हो जाता है, प्रोडक्ट क्या बनता है, उसमें कलरलेस मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्यूशन बन जाता है, और कॉपर के जो पीसेस होते हैं, कॉपर जो है वो पीसेस के रूप में अंडर द सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्यूशन के अंडर सेटल हो जाते हैं. ओके, कॉपर के पीसेस. देन अगर नेक्स्ट वाला अगर देखते हैं हम लोग, उसके अंदर क्या है, ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, उसके अंदर हमने एक न्यू ब्रांड न्यू एकदम आयरन नेल डाल दिया है, उसको एक हफ्ते के लिए छोड़ दिया है. एक हफ्ते को छोड़ने के बाद में क्या हो गया है, जो कॉपर सल्फेट था, कॉपर सल्फेट में से जो सल्फेट आयन है वो क्या करता है, आयरन के साथ रिएक्ट कर लेगा. ठीक है, और वो क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पे कॉपर जो है वो कॉपर मेटल ऑन आयरन, आयरन के ऊपर क्या है, ऊपर जो जंग लग जाता है वो क्या होता है, उसमें कॉपर के आयन्स होते हैं वो उस पे चले जाते हैं, और सल्फेट जो है ग्रीन कलर का आयरन सल्फेट सॉल्यूशन जो है वो बन जाता है. ठीक है, समझ में आएगा, ये होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इसके बाद में आता है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल. सो होती क्या है रिएक्टिविटी सीरीज, सो अरेंजिंग ऑफ मेटल इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल. अगर अरेंज किए गए मेटल्स को उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव से लेके लीस्ट रिएक्टिव तक अगर अरेंज किया गया है, तो उस चीज को हम, उस ऑर्डर को, उस रिएक्टिविटी को हम बोलेंगे रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल. ओके, पोटेशियम, सोडियम मैंने आपको बताया बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं विगरियसली, ये कोल्ड वाटर में भी रिएक्ट कर लेते हैं, ये एयर में भी, मॉइस्चर
भी अगर इनको मिलता है तो उसमें भी ये क्या कर लेते हैं, रिएक्ट कर लेते हैं, बहुत इजीली रिएक्ट हो जाते हैं। उसके बाद में आता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, इनकी रिएक्टिविटी यहाँ से होते होते कम होनी शुरू हो जाती है। देन आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर एंड मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, यहाँ तक आते आते ये इतने ज्यादा लीस्ट रिएक्टिव होते हैं कि सिल्वर एंड गोल्ड जो है ये क्या होता है, वाटर से इवन अगर हाई टेम्परेचर भी होता है तो उसमें भी ये क्या नहीं करते हैं, कोई भी रिएक्ट नहीं करते हैं, कोई भी रिएक्शन शो नहीं करेंगे। ओके, सो that's all in this video. Thank you so much. If you like my video, please share and subscribe my channel, Vinita Shekhawat. Thank you so much.